اور یہ ہے اللہ الخالق۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف، جس کا مطلب ہے بہت نرمی کرنے والا۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریئیکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کے آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں 99 نیمز آف اللہ پارٹ 11 to 20 سیریز بائی رمشا سلطان۔ تو ان کی جو ہے سیریز ہم نے پہلے سٹارٹ کری تھی، تو اس میں جو ہے ہم نے پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 10 تک ان کی وہ ویڈیو دیکھی تھی، جس کے اندر انہوں نے اللہ کے نام بتائے تھے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے، اللہ ہماری ساری باتیں قبول کرنے والا ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ مطلب اللہ کے جو 99 نیمز ہیں ان میں سے 10 ناموں کے مطلب انہوں نے ہمیں بتائے تھے۔ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی یہ، اور یہ بتاتی بھی بہت اچھے طریقے سے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ واقعی میں جو پارٹ 1 ہم نے دیکھا تھا اس میں بہت طریقے سے انہوں نے اللہ کے نام بتائے تھے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، آپ کی گناہوں کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ تو بہت ایسے جو ہے ورڈز ہم نے سنے تھے جو انہوں نے اللہ کے بارے میں ہمیں بتائے تھے۔ تو وہ ویڈیو ہمیں بہت زیادہ پسند آئی تھی، کیونکہ انہوں نے ہر نام کا ایک میننگ بھی بتایا تھا، جو کہ مجھے بہت پسند آیا، اور بہت اچھی طریقے سے، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، بہت آرام سے یہ بات کو بتاتی ہے۔ تو مجھے ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے وہ لہجہ مجھے بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ خاص ہونے والا ہے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی، جس کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے اس نام میں ہر اس انسان کے لیے امید ہے جو بیمار ہے۔ جب بھی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے اسے ایک کانٹا بھی کیوں نہ چبھ جائے، تو اس تکلیف کے بدلے اللہ اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صرف جسم کی بیماریاں ہی نہیں بلکہ دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو سیڈنس، ڈپریشن یا انزائٹی ہے تو اللہ سے اپنے لیے دعا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس ڈارک فیز سے باہر نکال دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز، ڈاکٹرز سب کو ریفر کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ تو اللہ کا یہ نام ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے کوئی بھی بیماری ہو، اللہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے بدلے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے العفو، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب رمضان کی خاص لیلۃ القدر کی رات ہو تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس میں اللہ کا یہ خاص نام آتا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو پوری طریقے سے مٹا دیتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ تو جب بھی آپ گناہ کر بیٹھیں، اللہ کے اس نام کو پکار کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل، مطلب انصاف کرنے والا۔ اللہ ایک انصاف کرنے والا رب ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا کے جسٹس سسٹم کی ریالٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے، معصوم لوگ سزائیں کاٹتے ہیں اور ظالم لوگ کھلے عام گھومتے ہیں اور جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ It's called the day of judgment, the day of justice، جس دن ہر انسان کو اس کے کیے گئے کاموں کا بدلہ ملے گا، چاہے اچھے ہو یا برے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے، اور اللہ بہت جلد آپ کے حق میں فیصلے کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا، انسان اور جانوروں کا پیدا کرنے والا، جن اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ نے بنایا ہے۔ خود ہماری باڈی کے اندر اللہ کا بنایا ہوا بہترین ڈیزائن ہے۔ اللہ نے انسانوں کے فنگر پرنٹس تک یونیک ڈیزائن کیے ہیں۔ اللہ نے صرف انسان کو ہی پیدا نہیں کیا
बल्कि दुनिया में इंसान की सारी जरूरत के सामान का इंतजाम भी करके दिया है। एक ही मिट्टी से अलग अलग रंग और अलग अलग टेस्ट की फल और सब्जियां उगा दी, पानी सही के बात लिए है। पूरी वाटर साइकिल का इंतजाम करके दिया और सांस लेने के लिए दुनिया में ऑक्सीजन आम कर दी। अल्लाह ने हमें सिर्फ एक बार ही पैदा नहीं किया, बल्कि मौत देने के बाद फिर से पैदा करने पर कादिर है, और ये है अल्लाह अल खालिक। अल्लाह के बिल्कुल। नामों में से एक जन्म और नाम है मरण अगर अल किसी के लतीफ, हाथ में है तो जिसका वो है मतलब सिर्फ है अल्लाह। बहुत नरमी करने वाला। अल्लाह बहुत बारीक तरीके से आपका ख्याल रखता है। अल्लाह खास आपके लिए अलग अलग जरियों से मदद पहुंचाता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता। कभी बैठकर सोचिए कि दुनिया के किस किस हिस्से से अल्लाह आप तक आपका रिज्क पहुंचा देता है, बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे सच कितने बात। बड़े बड़े हादसे हैं जिससे अल्लाह ने आपको बचाया है और आपको उसकी भनक तक नहीं। अल्लाह अपने किए गए एहसानों को कभी नहीं जताता। अल्लाह आपसे, आपके माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जब अल्लाह से उसके बंदे माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह फौरन माफ़ कर देता है। कई बार हमारे ऊपर आई तकलीफ़ें भी हमारे हक में बेहतर होती हैं। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत को महसूस महसूस करें और करें। उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अल्लाह के सुकून पहुंचाने वाले नामों में से एक नाम है अल मुहैमिन, जिसका मतलब है हिफाजत करने वाला, अमन देने वाला। अल्लाह वो हस्ती है जो अपनी मखलूक की हिफाजत करता है और अमनो अमान में रखता है। जागते हुए, सोते हुए, हर वक्त अल्लाह हमारे जानो माल की हिफाजत करता है। जब हम सफ़र में होते हैं तो अल्लाह हादसों से हमारी हिफाजत करता है। आज हम अपने घरों में महफूज हैं क्योंकि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। सही बात। इंसान और फरिश्ते कभी भी परफेक्ट गार्ड्स नहीं हो सकते, पर अल्लाह हम पर पूरा पूरा निगहबान है। अल्लाह आपके साथ वाकई में। हर वक्त मौजूद है, जहाँ पर भी आप हों। इस वक्त भी अल्लाह आपको देख रहा है। कभी भी किसी इंसान से मत डरिएगा, क्योंकि आपकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अल्लाह के उठाया पास हुआ है। है, अल्लाह ने। और जब तक अल्लाह ना चाहे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के नामों में से सबसे खास नाम है अस-समद, जिसका मतलब है वो जात Eternal। जिसकी शान के मुकाबले कोई और नहीं। अल्लाह किसी किसी और का की शान मोहताज नहीं। नहीं, बल्कि सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है। कोई उसकी इबादत करे या ना करे, उसकी शान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आता। अल्लाह को खाने शानो पीने की शहंशाह। कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो तो सारी मखलूक को खिलाता और पिलाता है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह अकेला मुकम्मल है, उसे किसी वारिस की जरूरत नहीं। अल्लाह हमेशा बाकी रहने वाला रब है। अल्लाह कमजोर नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, बल्कि सारी कायनात अल्लाह से मदद मांगती है ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अल्लाह तो वो रब है, जब वो कुछ करने का इरादा करे तो बस कुन कहता है और वो चीज़ हो जाती है। सुभान कुन अल्लाह। फायकुन। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अज़-ज़ाहिर, वो जो सब अज़-ज़ाहिर। पर गालिब है, सबसे ऊपर है और बुलंद है। गौर करने वालों के लिए इस पूरी कायनात में अल्लाह की बहुत सी निशानियां हैं। सूरज, चांद और सितारे, दरख्त और पहाड़, परिंदे और जानवर, सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है। आप खुद अपनी बॉडी के अंदर अल्लाह की निशानियों को देखिए। इतने सारे ऑर्गन्स, हड्डियां, मसल्स और खून सब मिलके एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। औरत के पेट के अंदर 9 महीने की चाइल्ड ग्रोथ किसी मौजज़े से कम नहीं। अपने बिल्कुल, आसपास वाकई में। नेचर को ऑब्जर्व करिए, कैसे अल्लाह एक बीज से एक दरख्त बना देता है और वो दरख्त फिर फल भी देने फल लगता देता है। है। इंसानों के पीने के लिए अल्लाह ने कैसे वाटर साइकिल बना दी। ये पूरी कायनात अरबों खरबों सालों से अल्लाह के हुक्म पे चल रही है। समझदार लोगों के लिए इस मखलूक में बहुत सारी निशानियां हैं और अल्लाह हर चीज़ में जाहिर है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल बातिन, जिसका मतलब है छुपा हुआ और पोशीदा। ह्यूमन कैपेसिटी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस दुनिया में हम अल्लाह को देख पाएं। हम अल्लाह को नहीं देख सकते, पर अल्लाह सब देखता है। इतना छुपा हुआ अल्लाह होने के सब बावजूद देखता है। अल्लाह हर चीज में जाहिर है। जो लोग समझ रखते हैं उन्हें हर चीज में अल्लाह की निशानियां दिखती हैं। ईमान की शर्त ही ईमान बिल गैब है, मतलब बगैर देखे अल्लाह पर, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, किस्मत पर, मौत के बाद जिंदा होने पर, जन्नत और दोजख पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाना। जो लोग बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं
उनका ईमान काबिल तारीफ है। अल्लाह को देख पाना जन्नतियों का सबसे बड़ा तोहफा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल करे और उसे देखने के तोहफे से नवाजे। बिल्कुल सही बात। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अश-शहीद, जिसका मतलब है गवाह। अल्लाह हर चीज पर गवाह है। अश-शहीद। अल्लाह सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। वो बंदों के आमाल से बखूबी वाकिफ है। इस कायनात की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। कंधों पर जो फरिश्ते हमारे नामा एमाल लिखते हैं, अल्लाह को उनकी भी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अकेला ही हिसाब लेने के लिए काफी है। अकेले में की गई इबादत, सदका, नेकी और दुआएं, यहाँ तक कि रात के अंधेरों में निकले हुए एक एक आंसू पर अल्लाह गवाह है। कयामत के दिन अल्लाह सबसे बड़ा गवाह होगा। कभी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें, कभी किसी को धोखा ना दें, कभी किसी पे झूठा इल्जाम ना लगाएं। अकेले में गुनाह करने से बचा करें, क्योंकि जिस गुनाह का कोई गवाह नहीं होता, उस गुनाह का उसका गवाह गवाह अल्लाह खुद है। सही बात है। क्या बात है यार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। मतलब जैसे कि हमने इनकी पहली वीडियो भी देखी थी, उस वीडियो के अंदर भी इन्होंने जितने अच्छे से समझाया था कि अल्लाह के, तब उन्होंने 1 से लेके 10 तक बताए थे ये नाम है और इनके ये मीनिंग है। आज इन्होंने 11 से लेके 20 तक बताए हैं कि उनके ये नाम है और इसका ये मतलब है। क्योंकि अगर हम जैसा कोई आम इंसान होगा, वो अगर ऐसा नाम पढ़ेगा तो शायद उसको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा। पर इस वीडियो के सारे हमें समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब है वो प्रोटेक्टर है, इसका मतलब है वो हमारी विटनेस कर रहे हैं। तो सच में यार वीडियो बाक कमाल थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। वाकई में वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इनका जो बोलने का लहजा है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इतनी सरल शब्दों में ये, अगर आप नॉर्मली इन वर्डों को पढ़ें तो आपको वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आएगा, लेकिन जिस लहजे के साथ ये सारी बातों को समझाती हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इन्होंने पहले ही जो है वर्ड अश शफी का मतलब बताया कि सारे दर्द की जो दवा है, सारे दुखों को और बीमारियों को खत्म करने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो वाकई में ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप किसी को भी अपना दर्द बताएंगे तो वो आपका दर्द सिर्फ सुन सकता है। अगर सुनने से वो दर्द बहुत ज्यादा तो कम नहीं होगा, लेकिन अगर उस दर्द को आपको खत्म करना है तो आपको जो फरियाद है वो अल्लाह के आगे ही करनी पड़ेगी। तो हमेशा सारी दुख दर्दों का जो खत्म करने वाला है वो अल्लाह ही है, और सारी खुशियां बरकत देने वाला भी सिर्फ अल्लाह ही है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है और मुझे वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई। मैं चाहूंगी कि ऐसी बहुत सारी वीडियो की रिकमेंडेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हमें हमेशा इस तरीके की वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।